Hello students, this is our dimensional analysis part 2. So in the part 1, I have discussed about dimensions and how to find the dimension of a physical quantity. And in this video, I will continue to find the dimensions of some other physical quantity, and we will also discuss the application of dimension analysis. So let us start. So as you know, we have 7 fundamental or base quantities and their dimension is represented as follows. So first fundamental quantity is mass. The unit of mass is kilogram and the dimension of mass is capital M. Second fundamental quantity is length. The SI unit, or you can say the MKS unit of length, is meter and the dimension of length is capital L. Third fundamental quantity is time. SI unit of time is second and the dimension of time is capital T. Then we have temperature with unit Kelvin and dimension capital K. Then we have electric current having unit ampere and dimension capital A. So as you know, in the previous video I have discussed about dimensions. So this is a revision. You have to write the dimension in square close bracket. Okay, so this is the representation of dimension, and you have to remember only 5 dimensions. Okay, amount of substance and luminous intensity are not so important, but the other 5 physical quantities are very important. So you have to memorize, you have to learn these 5 quantities and their dimension. It's so easy. So mass have dimension capital M, length has capital L, time has capital T, temperature capital K, and electric current has dimension capital A. So let us move forward to find the dimensions of some other physical quantity. So these are some thermal quantities. Thermal means these formulas are related to heat. Okay, you will study these formulas in your upcoming chapters in class 11 physics. So for this time you have to just remember, you have to just know how to find the dimension of a physical quantity. So let us take the first example. So we have a physical quantity specific heat. Okay, and the formula of specific heat is heat divided by mass multiply temperature. देखिए ये जो फॉर्मूलाज हैं, जैसे जैसे आप 11th में चैप्टर्स को स्टडी करते जाओगे वैसे वैसे सारे फॉर्मूलाज आपके सामने आते जाएंगे और तब आपको ये फॉर्मूला याद भी हो जाएंगे. तो अभी आपको इन फॉर्मूले को याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको डायमेंशन याद करनी है, जो कि 5 क्वांटिटीज़ की 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ में 5 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की आपको डायमेंशन याद रखनी है. बहुत सिंपल है, एक एक सिंबल ही तो है जो आपको याद रखना है. ठीक है, और आपको फॉर्मूले में बस उनकी डायमेंशन पुट करनी है और पुट करने के बाद जैसे x मल्टीप्लाई x करते हैं तो x का स्क्वायर हो जाता है, इसी तरीके से यहाँ भी डायमेंशन को आपको मल्टीप्लाई या डिवाइड करना है एज यूजुअल जो आप अलजेब्रा में करते हो. ओके, सो फर्स्ट क्वांटिटी इज स्पेसिफिक हीट. अब देखिए स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला क्या होता है, हीट डिवाइड बाय मास मल्टीप्लाई बाय टेम्परेचर. चलिए मैं आपको इसको समझाता हूं. तो हमारी जो स्पेसिफिक हीट है, सो देखिए हमारे पास जो क्वांटिटी है, सो वी हैव स्पेसिफिक हीट. क्या है हमारे पास, स्पेसिफिक हीट है, और इसका जो फॉर्मूला है you can see heat upon mass multiplied by temperature. So heat upon mass and multiply by temperature. So this is the formula. ठीक है, अब आपको करना क्या है, अगर आपको स्पेसिफिक हीट की डायमेंशन निकालनी है तो सबसे पहले आपको हीट की डायमेंशन डालनी होगी, मास की डायमेंशन डालनी होगी और टेम्परेचर की डालनी होगी. देखिए हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. तो जो हीट होती है, हीट क्या होती है, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है. तो जो डायमेंशन एनर्जी की होगी वही डायमेंशन किसकी होगी, आपकी हीट की होगी. तो एनर्जी की डायमेंशन क्या होती है, ml2t-2. ये मैंने आपको कल निकाल के बता दिया था. सो एनर्जी हैविंग डायमेंशन ml2t-2 डिवाइड बाय नीचे क्या आपका मास है, मास की डायमेंशन आपकी क्या हो जाएगी, m हो जाएगी विद ए स्क्वायर ब्रैकेट रिप्रेजेंटेशन. टेम्परेचर की डायमेंशन क्या होती है, k होती है ना. अब आप देखिए यहाँ पे m पहले से कितना, एक m पहले से, नीचे क्या है, यहाँ भी नीचे भी m है. सो m से m कैंसिल हो गया एक तरीके से, तो यहाँ पे m तो बचा नहीं. ओके, उसके बाद देखिए L की 2, तो हमारे पास क्या बचा, L स्क्वेयर बचा. ठीक है, देन
t-2 हमारे पास ऑलरेडी प्रेजेंट है, और नीचे यहाँ पे k है, जब ये ऊपर जाएगा तो k की पावर कितनी हो जाएगी, -1। सो दिस इज द डायमेंशन ऑफ स्पेसिफिक हीट। ठीक है, आप लिख सकते हो m0 भी लिख सकते हो, बिकॉज स्पेसिफिक हीट में मास तो होता ही नहीं है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो m0। तो आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, गलत नहीं होगा। m की 0 डायमेंशन, देन l की डायमेंशन यहाँ पे 2 हो गई आपकी, देन t की डायमेंशन आपकी -2 हो गई यहाँ पे, एंड देन k की डायमेंशन यहाँ पे -1 हो गई। सो दिस इज द कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन, कंप्लीट डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्पेसिफिक हीट। ओके, चलिए देखिए, तो यहाँ पे आप देख सकते हो m0 L2 T-2 K-1, तो ये मैंने आपको समझा दिया ये कैसे यहाँ पे आया है। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वांटिटी देखते हैं, थर्मल कंडक्टिविटी। सो हमारी नेक्स्ट क्वांटिटी क्या है यहाँ पे, थर्मल कंडक्टिविटी। ओके, तो देखिए जो थर्मल कंडक्टिविटी का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, हीट मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस डिवाइड बाय एरिया मल्टीप्लाई बाय टेम्परेचर मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो देखिए ये आपको समझाता हूँ। सो नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड द डायमेंशन ऑफ नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी, स्पेसिफिक हीट की मैंने आपको निकाल के दिखा दी। सो अब हम निकालने जा रहे हैं थर्मल कंडक्टिविटी की। ठीक है, तो अब हमारी क्वांटिटी क्या है, वी हैव थर्मल कंडक्टिविटी, मैंने शॉर्ट में लिख दिया ये कंडक्टिविटी। सो थर्मल कंडक्टिविटी का फॉर्मूला आप देख सकते हो, हीट मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस। सो सबसे ऊपर आपका क्या है, ऊपर आपका हीट है, मल्टीप्लाई बाय आपका डिस्टेंस है, और अपॉन में आपका एरिया मल्टीप्लाई टेम्परेचर मल्टीप्लाई टाइम। सो एरिया मल्टीप्लाई टेम्परेचर मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो बारी बारी अब आपको क्या करना है, डायमेंशन डालनी है। देखिए हीट क्या होता है, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, हैविंग डायमेंशन क्या हो गया, ml² T-2, तो ये तो हीट की डायमेंशन हो गई। देन डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या होता है, लेंथ होता है, एक तरीके की लंबाई होती है, सो l डायमेंशन हो गई, अपॉन में एरिया, एरिया की डायमेंशन क्या होती है, l² होती है। ठीक है, देन टाइम आ गया, टाइम टेम्परेचर आ गया, टेम्परेचर की डायमेंशन k होती है, एंड फाइनली हमारे पास टाइम आ गया, टाइम की डायमेंशन t होती है। अब आपको सिंपल इनको ऐड करना है। तो देखिए यहाँ पे m एक ही है, नीचे तो m है ही नहीं, तो एक हमारे पास तो m आ जाएगा। सो हमारे पास m आ गया। ठीक है, सो m आगे देखिए, यहाँ पे l की 2 है, यहाँ पे l की 2 और यहाँ पे l की 1, तो टोटल l की 3 हो गई, और नीचे l की 2 है, तो l की कितनी बची आपकी, 1 बची, तो l बच गया ओनली। उसके बाद t की ऊपर -2 है, नीचे 1 है, 1 ये जब ऊपर जाएगा -1 हो जाएगा, तो टोटल कितना हो गया, t की माइनस आपकी 3 हो गई यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे आपकी t की कितनी हो गई, -3, तो t की यहाँ पे -3 आ जाएगा, और आपका यहाँ पे क्या बचा, k, ये k जब नीचे जाएगा तो k की क्या हो जाएगी डायमेंशन, -1, तो k की -1। सो दिस इज द कंप्लीट डायमेंशन। ठीक है, सो थर्मल कंडक्टिविटी की डायमेंशन क्या हो गई, ml/T-3 K-1। ठीक है, ml/T-3 K-1, यू कैन सी हेयर। तो आप इस टेबल में भी देख सकते हैं, और बाकी मैं आपको समझा ही रहा हूं यहाँ पे। ओके, सो अब हम बढ़ते हैं अपनी थर्ड फिजिकल क्वांटिटी, नाउ इट इज कॉल्ड स्टीफन्स कांस्टेंट। ठीक है, तो अब हम निकालने जा रहे हैं किसकी, स्टीफन्स कांस्टेंट की। देखिए कुछ नहीं है, आपको डायमेंशन डालनी है, सिंपल मैथमेटिक्स है, l में l ऐड करेंगे l² हो जाएगा, l की 3 में l की 2 माइनस करेंगे l आ जाएगा। तो ये मैथमेटिक्स आपको आता ही है, बस आपको फॉर्मूला और डायमेंशन थोड़ा सा याद करना है। ठीक है, सो चलिए अगला हमारा जो फिजिकल क्वांटिटी है दैट इज कॉल्ड स्टीफेंस कांस्टेंट। तो अब हम डायमेंशन निकालने जा रहे हैं स्टीफेंस कांस्टेंट की। अब सीधी सी बात है, फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला क्या है, एनर्जी डिवाइड बाय एरिया इनटू टाइम। देखिए सो एनर्जी, तो ऊपर तो हमारी क्या है, एनर्जी है, डिवाइड बाय नीचे है देखो आपका एरिया, को मैं शॉर्ट में ए लिख रहा हूं, मल्टीप्लाई बाय टाइम। सो मल्टीप्लाई बाय आपका क्या है यहाँ पे, टाइम है, और टाइम के साथ मल्टीप्लाई बाय टेम्परेचर की पावर 4 यहाँ पे। तो टेम्परेचर की पावर कितनी है इस फॉर्मूले में, 4 है। चलिए कोई बात नहीं, डालते हैं। अब एनर्जी की डायमेंशन आपको पता है, एनर्जी की डायमेंशन क्या होती है, ml² T-2, दिस इज द डायमेंशन ऑफ एनर्जी, अपॉन एरिया की क्या होती है, l² होती है। ठीक है, ब्रैकेट आप लगा लेना। टाइम की डायमेंशन क्या होती है, t होती है, और टेम्परेचर की क्या होती है, k होती है, और k की कितनी पावर हो जाएगी, 4 हो जाएगी। बस आप इसको ऐड कर सकते हो। सो यहाँ पे m एक ही है, तो m का m आ जाएगा, देन l की 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो l की तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, है ना। देन t की -2 यहाँ पे, -1 यहाँ पे, तो t की कितना हो जाएगा, माइनस यहाँ पे 3 आ जाएगा।
एंड देन के की 4 है, ऊपर जाएगा तो के की क्या हो जाएगा, के की यहाँ पे -4 हो जाएगा. सो दिस इज द डायमेंशन ऑफ स्टीफेंस कांस्टेंट. तो ये डायमेंशन किसकी हो गई, स्टीफेंस कांस्टेंट की, ml0 t-3 k-4. ठीक है. सो स्टीफन कांस्टेंट की आप यहाँ पे डायमेंशन निकाल सकते हो. यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन करना होगा, मैंने आपको निकालना बता दिया. विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला हम यहाँ पे निकाल सकते हैं. ठीक है, यहाँ पे थोड़ा गलती हो गई, लेकिन आपको पता है कैसे निकालना है, यू कैन इजिली पुट. ठीक है, अगला आता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट. देखिए अगला हमें किसका निकालना है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का. हाँ, ये स्टीफन कांस्टेंट की डायमेंशन मैं आपको पीडीएफ में करेक्ट करके दे दूंगा, तो आप नोटबुक में लिखोगे तो आपकी कोई गलती नहीं होगी. ओके, ये मैं करेक्शन करके आपको पीडीएफ में दे दूंगा, सो डोंट वरी फॉर दिस. अगला होता है हमारा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट. अब देखिए बोल्ट्जमैन कांस्टेंट क्या होता है, एनर्जी अपॉन टाइम, एनर्जी अपॉन टेम्परेचर. अब सिंपल है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट क्या होता है हमारा, एनर्जी डिवाइड बाय टेम्परेचर. सो अगला कांस्टेंट हमारा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है. तो देखिए, सो नेक्स्ट वी हैव बोल्ट्जमैन कांस्टेंट. इसकी हमें डायमेंशन निकालनी है, तो इसका फॉर्मूला पहले आप देख लो क्या होता है, एनर्जी अपॉन टेम्परेचर होता है. सो ऊपर तो एनर्जी आएगा, नीचे आपका टेम्परेचर आएगा. एनर्जी की डायमेंशन क्या होती है, ml² t-2. दिस इज एनर्जी. टेम्परेचर क्या होता है, T होता है, तो डायमेंशन क्या हो गई, ml² t-3. सो t-3, दिस इज द डायमेंशन, ml² t-3. ठीक है. सो एनर्जी ml² t-2 डिवाइड बाई टेम्परेचर की यहाँ पे k होती है, तो क्या आ जाएगा, ml², सॉरी देखिए नीचे यहाँ पे टेम्परेचर मैंने टी डाल दिया, यहाँ पे k आएगा. एक सेकंड मैं इसको करेक्शन कर देता हूँ. एनर्जी की डायमेंशन ml² t-2 हो गई आपकी, नीचे टेम्परेचर है, टेम्परेचर को k से रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, कोई बात नहीं. सो टेम्परेचर की क्या होती है रिप्रेजेंटेशन, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ टेम्परेचर, डायमेंशन टेम्परेचर की k होती है. सो क्या हो गया, m हो गया, l² हो गया, t-2 हो गया, और यहाँ पे k1 है, ऊपर जाएगा तो k की पावर, मतलब k की पावर कितनी हो जाएगी, -1. So the dimension of Boltzmann constant is ml² t-2 k-1. So you can see ml² t-2 k-1. तो ये सारी डायमेंशंस कर लिए हमने. यहाँ थोड़ा सा करेक्शन है, वो आप कर लोगे, खुद भी कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है. जस्ट आपका फॉर्मूला पता होना चाहिए और आपको डायमेंशंस याद होनी चाहिए, और आपको सीधा एल्जेब्रिक मेथड से ऐड या सबट्रैक्ट करना है. चलिए आगे बढ़ते हैं. अब देखिए कुछ और फिजिकल क्वांटिटी है, और ये जो फिजिकल क्वांटिटी है ये हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की है. ये तो इलेक्ट्रिसिटी की यहाँ पे कुछ फिजिकल क्वांटिटीज है. पीछे अभी जो मैंने आपको फिजिकल क्वांटिटीज कराई थी वो थर्मल थी, थर्मल क्वांटिटीज थी. थर्मल मतलब जो टेम्परेचर से या हीट से रिलेटेड होती है. अब हम जो फिजिकल क्वांटिटीज देख रहे हैं दे आर रिलेटेड टू इलेक्ट्रिसिटी. तो 10th क्लास में भी आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर पढ़ा है, और वहां पे आपने इलेक्ट्रिक चार्ज पढ़ा होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपने पढ़ा है, रेजिस्टेंस आपने पढ़ा है, और रजिस्टिविटी आपने पढ़ा है, कैपेसिटेंस आपने नहीं पढ़ा. ये सब आप अभी 12th में भी पढ़ोगे. चलिए सबसे पहले इलेक्ट्रिक चार्ज की डायमेंशन निकालते हैं क्या होती है. अब देखिए इलेक्ट्रिक चार्ज है हमारे पास. सो वी हैव इलेक्ट्रिक चार्ज, वी हैव टू फाइंड द डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज. अब देखिए बहुत सिंपल है. कैसे सिंपल है, आपको पता है करंट क्या होता है, करंट इज डिफाइंड एज फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम. तो यहाँ से चार्ज क्या हो जाएगा, यहाँ से चार्ज हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके करंट इनटू टाइम. आपको पता है करंट की डायमेंशन क्या होती है, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए से रिप्रेजेंट करते हैं. टाइम की डायमेंशन टी होती है. तो यहाँ पे चार्ज की डायमेंशन क्या हो गई, सो चार्ज हैविंग द डायमेंशन ए इंटू टी. देखिए यहाँ पे तो चार्ज की डायमेंशन हमारी क्या हो गई, ए इंटू टी. तो एम की तो डायमेंशन 0, एल की 0, बिकॉज हमारा जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है उसमें मास की कोई डायमेंशन नहीं होती और लेंथ की भी कोई डायमेंशन नहीं होती. सो नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड द डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. चलिए अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डायमेंशन निकालते हैं. किसकी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की. पोटेंशियल डिफरेंस आप बोल सकते हो या फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. देखिए जो पोटेंशियल होता है, सो वी आर नाउ गोइंग टू फाइंड द डायमेंशन ऑफ पोटेंशियल. पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, पोटेंशियल इज डिफाइंड एज वर्क डन पर यूनिट चार्ज. ये हमारा पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है. चलिए अब देखिए वर्क, वर्क इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. सो द डायमेंशन ऑफ वर्क इज सेम एज डायमेंशन ऑफ एनर्जी. तो वर्क की डायमेंशन क्या हो गई, ml² t-2. दिस इज द डायमेंशन ऑफ वर्क. नीचे चार्ज है, चार्ज की डायमेंशन अभी अभी हमने 80 निकाली थी. अब इसको सॉल्व कर लीजिए. m का m रहेगा, l² का l² रहेगा, और यहाँ पे t की -2, और नीचे वाली ऊपर जाके -1 हो जाएगी. तो टोटल t की कितनी हो जाएगी, -3, और a की ऊपर जाके -1 हो जाएगी. तो पोटेंशियल हैज द डायमेंशंस ml² t-3 a-1. ओके, ml² t-3 a-1. आपको निकालना आ गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इसका भी. चलिए अब आ जाता है रेजिस्टेंस. रेजिस्टेंस क्या होता है आपको पता है, फ्रॉम ओम्स लॉ यू नो. सो
ओम्स लॉ में हमको पता है, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या होता है, V इक्वल टू आई इंटू आर होता है, और अगर मेरे को आर की डायमेंशन निकालनी हो तो आर क्या होता है, V बाय आई होता है। सो हमें क्या करना है, पोटेंशियल की डायमेंशन डालनी है, करंट की डायमेंशन डालनी है, उनको डिवाइड कर देना है। अभी अभी हमने पोटेंशियल की डायमेंशन निकाली थी, क्या निकाली थी, पोटेंशियल की जो डायमेंशन होती है वो क्या होती है, एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री ए माइनस वन, एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री, सो एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री एंड ए माइनस वन, दिस इज द डायमेंशन ऑफ पोटेंशियल। ब्रैकेट आप लगा लेना अपने आप, ये अंडरस्टूड है, ब्रैकेट लगानी है, मैं नहीं लगा रहा हूँ, कोई बात नहीं, मैं सॉल्व कर रहा हूँ। सो आपको जब भी अपनी कॉपी में करना है या एग्जाम में करना है, किसी टेस्ट में करना है, सो यू हैव टू पुट द स्क्वायर ब्रैकेट विच शोज द डायमेंशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। ओके, सो आई हैव पुट द डायमेंशन ऑफ पोटेंशियल विच इज एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री ए माइनस वन। नाउ नीचे आपका करंट है, सो करंट इज डिफाइंड एज चार्ज इंटू टाइम, सो करंट की डायमेंशन क्या होगी, ए इंटू टी। नाउ सिंपली इनकी पावर को सॉल्व कर लीजिए, यहाँ पे m है और कोई m नहीं है तो m का m रहेगा, यहाँ पे एल स्क्वायर है, नीचे भी एल नहीं है तो एल स्क्वायर का एल स्क्वायर रहेगा। अगेन यहाँ पे टी की माइनस थ्री, एक यहाँ से आ जाएगा तो टी की माइनस फोर हो जाएगा, ए की यहाँ पे माइनस वन है, एक यहाँ से आ जाएगा तो ए की माइनस टू हो जाएगा। सो दिस इज द डायमेंशन ऑफ रेजिस्टेंस, एम एल स्क्वायर टी माइनस फोर ए माइनस टू, एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री, ठीक है, ये हमारी यहाँ पे रेजिस्टेंस की डायमेंशन हो जाएगी। ठीक है, सो नीचे हमको किसकी डालनी है, करंट की डालनी है, अच्छा मैंने चार्ज की डाल दी, कोई बात नहीं, देखिए नीचे क्या आएगी, यहाँ पे करंट की डालनी है हमें, सॉरी मैंने चार्ज की यहाँ पे डाल दी, कोई बात नहीं, कुछ नहीं करना, नीचे क्या करना है, करंट डालना है, और करंट का क्या होता है, ए होती है डायमेंशन, बस। तो ये क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा, एल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, टी की माइनस थ्री आपका ऑलरेडी है, और ए की क्या हो जाएगा, माइनस टू। सो रेजिस्टेंस हैज द डायमेंशन ऑफ एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री ए माइनस टू, ठीक है, एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री ए माइनस टू, ये भी मैंने आपको सॉल्व करा दिया है। चलिए कैपेसिटेंस देखते हैं, कैपेसिटेंस इज डिफाइंड एज, देखिए अब हम निकालते हैं कैपेसिटेंस की। सो नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड द डायमेंशंस ऑफ कैपेसिटेंस, ये आप ट्वेल्थ क्लास में इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ोगे कैपेसिटेंस। सो हमारा फॉर्मूला होता है चार्ज इक्वल टू क्यू इक्वल टू सी वी होता है, वेयर सी इज द कैपेसिटेंस, और यहाँ से सी क्या हो जाएगा, सी इक्वल टू क्यू बाई वी हो जाएगा फॉर्मूला। तो क्यू क्या होता है, चार्ज होता है, चार्ज की डायमेंशन अभी हमने निकाली थी, करंट इनटू टाइम होता है, ए मल्टीप्लाई बाई टी होता है, और नीचे क्या है, वी पोटेंशियल। अब पोटेंशियल की डायमेंशन हम देख लेते हैं, एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री ए माइनस वन, सो एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री एंड ए माइनस वन। चलिए सॉल्व कर लीजिए, तो ऊपर जब m जाएगा तो m की तो माइनस वन हो जाएगी, सो m की तो आपकी माइनस वन हो गई, एल स्क्वायर ऊपर जाएगा तो l की माइनस टू हो जाएगी, t माइनस थ्री, और यहाँ पे t वन है तो t की फोर हो जाएगी, और a माइनस वन है ऊपर जाके प्लस वन हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज द डायमेंशन ऑफ, तो ये रही आपकी m माइनस वन, एल माइनस टू, टी की फोर और a का स्क्वायर, ये मैंने आपको निकालना दिखा दिया। देन रजिस्टिविटी है, रजिस्टिविटी का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, रेजिस्टेंस इनटू एरिया इनटू लेंथ। रेजिस्टेंस का मैं अभी निकाल चुका हूँ, एरिया की एल स्क्वायर होती है, लेंथ की एल होती है, सॉल्व करना सबको आता है, आप इसकी इजीली फाइंड कर सकते हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। सो ये मैंने आपको कुछ फिजिकल क्वांटिटीज की डायमेंशंस निकालनी सिखा दी है, वैसे हमारे पास बहुत सारे फॉर्मूलाज होते हैं, अब सबका निकालना पॉसिबल नहीं है, तो ये कुछ फिजिकल क्वांटिटी, कल मैंने कुछ मैकेनिक्स की क्वांटिटीज का, जैसे फोर्स हो गया, मोमेंटम हो गया, एक्सेलेरेशन हो गया, वो मैंने आपको कल निकालना बता दिया था। सो जो मैकेनिक्स की फिजिकल क्वांटिटीज है वो मैंने आपको कल बता दिया था, और कुछ थर्मल क्वांटिटीज का मैंने डायमेंशन निकालना आपको आज बता दिया, और कुछ मैंने आपको इलेक्ट्रिसिटी की क्वांटिटीज का डायमेंशन निकालना बता दिया। ओके, तो आपको अगर फॉर्मूला पता है, आपको डायमेंशन पता है, सो यू कैन ईजिली फाइंड द डायमेंशन ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी। व्हाट यू नीड, you have to know first the dimension of that physical quantity and the associated formula, ये दो चीज आपको पता होंगी, आप आसानी से निकाल सकते हो, ठीक है। चलिए अब हम पढ़ते हैं कि डायमेंशन की क्या एप्लीकेशन होती है, विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन हम क्या क्या फिजिकल क्वांटिटीज को निकाल सकते हैं, या फिर कैसे हम डायमेंशन की हेल्प से फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में पढ़ सकते हैं। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी द एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस, ठीक है। तो हम इसकी डायमेंशन की एप्लीकेशन पढ़ने जा रहे हैं। देखिए सबसे पहली चीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जो यहाँ पे मैंने दो पॉइंट्स मेंशन कर रखे हैं, और ये आपको पता होना चाहिए, इसमें गलती नहीं होनी चाहिए। देखिए, इफ a प्लस बी एंड a माइनस बी आर मीनिंगफुल, देन a एंड b हैव सेम डायमेंशंस एंड सेम नेचर। इसका मतलब क्या है, अगर a और b हमारे पास, अगर a और b हमारे पास दो फिजिकल क्वांटिटीज हैं, और आप उनकी डायमेंशन को ऐड करना चाहते हो,
तो आप उनकी डायमेंशंस को तभी ऐड कर सकते हो जब वो दोनों फिजिकल क्वांटिटीज की डायमेंशन सेम होगी। मींस यू कैन ओनली ऐड द डायमेंशंस ऑफ दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव द सेम डायमेंशन। अगर आप दो फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन ऐड करना चाहते हो तो दोनों की डायमेंशन सेम होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल इन मैथमेटिक्स अगर मैं आपसे कहूंगा कि 3x स्क्वायर में 4x स्क्वायर ऐड करोगे तो कितना आएगा? You can say 7x square. So you can only add x square to x square. You can only add x with x. You can only add x cube with x cube. Similarly, you can only add same dimensions with each other. For example, the dimension of velocity can only be added to the dimension of velocity. Force की dimension के साथ आप force की dimension को add कर सकते हो. You cannot add force with mass. You can't add mass with velocity. समझ आया मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मैं ये बोल रहा हूं कि सेम डायमेंशंस को ही हम ऐड कर सकते हैं। वेलोसिटी में वेलोसिटी की डायमेंशन ऐड हो सकती है, एक्सेलरेशन में एक्सेलरेशन की डायमेंशन ऐड हो सकती है, एनर्जी में एनर्जी की डायमेंशन ऐड हो सकती है। सो ओनली सेम डायमेंशंस कैन बी एडिड। यू कांट ऐड टू डिफरेंट डायमेंशन विद ईच अदर। ये इस बात का मतलब हो गया। इसी तरीके से सेम डायमेंशन को ही आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, ठीक है, और ऐड कर सकते हो। सो यू कैन सब्ट्रैक्ट एंड ऐड ओनली सेम डायमेंशन, ठीक है। सेकंड चीज क्या है? इफ ए इक्वल टू बी, अगर दो फिजिकल क्वांटिटी जिनकी डायमेंशन सेम है, मतलब अगर ए और बी इक्वल है, अगर दो फिजिकल क्वांटिटी इक्वल है, दोबारा सुनिए मैं क्या कह रहा हूं, अगर दो फिजिकल क्वांटिटी इक्वल है तो इसका मतलब वो तभी इक्वल होंगी जब उनकी डायमेंशन भी इक्वल होंगी। सो ए इक्वल टू बी इज करेक्ट, देन ए एंड बी हैव सेम डायमेंशन। अगर ए और बी इक्वल है इसका मतलब ए और बी की सेम डायमेंशन है। समझ आया आपको? अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी ए है और कोई फिजिकल क्वांटिटी बी है, अगर ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है, ये तभी होगा जब दोनों की सेम डायमेंशन होगी, और अगर ये इक्वल है तो इसका मतलब दोनों की सेम डायमेंशन है। समझ आया? एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं। यहाँ पे देखिए, मान के चलिए आप वेलोसिटी में वेलोसिटी ऐड कर रहे हो। सो वेलोसिटी की जो डायमेंशन होती है वो होती है LT माइनस वन। सो वेलोसिटी की डायमेंशन LT माइनस वन होती है, तो इसमें आप LT माइनस वन ही ऐड कर सकते हो। सो व्हेन यू ऐड LT माइनस वन विद LT माइनस वन, व्हाट यू गेट? LT माइनस वन, सेम डायमेंशन मिलेगी। एक चीज और आप ध्यान रखना, जब आप दो सेम डायमेंशन को ऐड करते हो तो ऐड करने के बाद आपको वो ही डायमेंशन मिलेगी, ठीक है। यहां पे ऐसा नहीं होगा कि LT माइनस वन प्लस LT माइनस वन यू गेट 2LT माइनस वन, क्योंकि 2 का तो कोई डायमेंशन होता ही नहीं है। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? एक चीज ध्यान रखना, एक तो आपको हमेशा सेम डायमेंशन को ऐड करना होगा। जैसे अभी मैंने आपको बताया है कि यहाँ पे LT माइनस वन है, और अगर मैं आपसे कहूँ आप इसमें ओनली T को ऐड कर दो, आप नहीं कर सकते। अगर मैं कहूँ आप इसमें LT को ऐड कर दो, नहीं कर सकते हो। MLT को ऐड कर दो, नहीं कर सकते हो। मतलब आप सेम डायमेंशन में सेम डायमेंशन को ही ऐड कर सकते हो। एंड व्हेन यू ऐड, देखिए मैथमेटिक्स में क्या होता है, व्हेन यू ऐड वन एंड वन, तो जब आप एक और एक को जोड़ते हो आपको दो मिलता है। तो यहां पे डायमेंशन में ऐसा नहीं होता। अगर आप सेम डायमेंशन को ऐड कर रहे हो, LT माइनस वन प्लस LT माइनस वन, यू विल गेट अगेन LT माइनस वन। तो यहाँ पे 2 3 नहीं आएगा, क्योंकि इनका कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता। तो दिमाग में इस चीज को बैठा लो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अभी एप्लीकेशंस में भी इसका बहुत बेनिफिट होगा, इसी से आप क्वेश्चंस को कर पाओगे। अगर ये गलती करोगे तो हर क्वेश्चन में गलती होगी। तो पहली चीज, दो डायमेंशन को तभी ऐड कर सकते हो जब वो दोनों डायमेंशन सेम है, और अगर आप डायमेंशंस को ऐड करते हो तो ऐड करने के बाद आपको वही डायमेंशन रिजल्ट में मिलेगी, कोई नंबर नहीं मिलेगा। ओके, चलिए, तो ये मैंने आपको समझा दिया है। अब आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहली एप्लीकेशन इज चेकिंग द डायमेंशनल कंसिस्टेंसी ऑफ इक्वेशन। तो जो सबसे पहली एप्लीकेशन है डायमेंशन एनालिसिस की, वो क्या है? विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन हम ये चेक कर सकते हैं कि वेदर द गिवन इक्वेशन इज करेक्ट और नॉट। मतलब विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन एनालिसिस वी कैन चेक द करेक्टनेस ऑफ एनी इक्वेशन। हमें कोई भी मैथमेटिकल इक्वेशन दी गई है, जैसे मान के चलिए आपको एक इक्वेशन दी गई है कि फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। ये आपको एक इक्वेशन दी गई है, और आपको पता है इक्वेशन बिल्कुल सही है ना। न्यूटन्स का जो सेकंड लॉ ऑफ मोशन होता है, वो ये ड्राइव, वहां से मैथमेटिकल इक्वेशन ड्राइव होके आती है कि जो फोर्स होता है, फोर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। लेकिन ये जो इक्वेशन है, हम डायमेंशन की मदद से भी इस इक्वेशन को सही प्रूव कर सकते हैं।
ठीक है ना। सो विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन वी कैन चेक द करेक्टनेस ऑफ एन इक्वेशन। डायमेंशन की मदद से हम ये बता सकते हैं कि ये जो इक्वेशन है करेक्ट है या नहीं है। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे। अब एक एग्जांपल से समझते हैं। तो पहली एप्लीकेशन क्या है, डायमेंशनल कंसिस्टेंसी। डायमेंशनल कंसिस्टेंसी का मतलब क्या है कि हम ये बता सकते हैं कि वेदर द इक्वेशन इज डायमेंशनली कंसिस्टेंट, मतलब क्या उसकी डायमेंशंस सेम है। तो अगर कोई मैथमेटिकल इक्वेशन करेक्ट होगी वो तभी होगी जब उसकी डायमेंशनल इक्वेशन सेम होगी दोनों तरफ, लेफ्ट हैंड साइड भी राइट हैंड साइड भी। मतलब इस फॉर्मूले में जो डायमेंशन फोर्स की होगी वही डायमेंशन मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन की होगी। मतलब बोथ द साइड शुड हैव द सेम डायमेंशन, देन ओनली दिस इक्वेशन शुड बी करेक्ट एंड दिस इज कॉल्ड डायमेंशनल कंसिस्टेंसी। तो ये इक्वेशन कंसिस्टेंट कब होगी, जब दोनों तरफ डायमेंशन सेम होगी, है ना, तभी तो इक्वेशन कंसिस्टेंट होगी। तो डायमेंशन की मदद से पहली एप्लीकेशन क्या है, विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन एनालिसिस वी कैन चेक द करेक्टनेस ऑफ एन इक्वेशन, और यू कैन से वी कैन फाइंड द डायमेंशनल कंसिस्टेंसी, वी कैन चेक द डायमेंशनल कंसिस्टेंसी कि वेदर दिस इक्वेशन इज कंसिस्टेंट और नॉट। चलिए एग्जांपल देखते हैं। द टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी। अगर कोई बॉडी फॉल होती है तो आपको पता है दो एनर्जी होती है। अगर बॉडी मूव कर रही है तो काइनेटिक एनर्जी, और अगर बॉडी इनिशियली किसी हाइट पे तो पोटेंशियल एनर्जी। तो जब भी कोई बॉडी फ्री फॉल करती है तो उसकी दो एनर्जी होती है। सो द टोटल एनर्जी ऑफ द बॉडी इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, है ना। जो टोटल एनर्जी का सम होता है वो होता है काइनेटिक एनर्जी, डेट इज हाफ mv², और जो पोटेंशियल एनर्जी होती है डेट इज mgh। So the total energy of a body is the sum of two energies. One is the kinetic energy, other is the potential energy. अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ डायमेंशंस को निकालेंगे। आपको पता है लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, एनर्जी है। एनर्जी की डायमेंशन क्या होती है आपको पहले ही पता है। सो एनर्जी हैविंग द डायमेंशन ml²t-2, है ना। तो लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन तो हमें पता चल गई। अब हम बढ़ते हैं राइट हैंड की तरफ। अब देखिए राइट हैंड साइड हमारे पास दो टर्म्स हैं, एक तो ये वाली टर्म है हाफ mv² काइनेटिक एनर्जी वाली टर्म, एक हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी वाली टर्म है। तो सबसे पहले हम ये जो काइनेटिक एनर्जी वाली टर्म है इसकी डायमेंशन निकालते हैं। तो देखिए जो हाफ होता है 1/2, ये तो मैथमेटिकल नंबर होता है, इसकी तो कोई डायमेंशन होगी नहीं। अब आगे बढ़ते हैं मास। तो हाफ के बाद m है, m की डायमेंशन क्या हो गई, m की डायमेंशन तो m हो गई। तो देखिए हमारा फॉर्मूला क्या है, mv², m में m की डायमेंशन तो m हो गई। वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होती है, lt-1, और इसका क्या है यहाँ पे स्क्वायर है, तो आप इसका स्क्वायर कर दो। तो क्या बन गया, m l का स्क्वायर और t की -2 सॉल्व करने के बाद। तो हाफ mv² की डायमेंशन क्या आ गई, ml² t-2। इसी तरीके से पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, सो द फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल एनर्जी इज mgh। m की डायमेंशन कैपिटल M हो गई, g क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो एक्सेलरेशन की डायमेंशन क्या हो गई, lt-2, मैं कल निकाल के बता चुका हूं, मल्टीप्लाई बाय हाइट। हाइट क्या होती है, एक तरीके की लंबाई होती है, लेंथ होती है, इसकी डायमेंशन l हो गई। तो l इंटू एल क्या हो गया, l² हो गया। सो ml² t-2, दिस इज द डायमेंशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। सो यू कैन सी ml² t-2। तो जब आप राइट हैंड साइड को ऐड करोगे, हाफ mv² प्लस mgh करोगे तो क्या मिलेगा, अभी मैंने आपको बताया था यू कैन ओनली ऐड सेम डायमेंशन। तो यहां भी mlt-2, यहां भी mlt-2। सो व्हेन यू ऐड mlt-2 विद mlt-2 व्हाट यू गेट, मैंने आपको पहले बता दिया, यू नो mlt-2। तो लेफ्ट हैंड साइड भी हमारे पास mlt-2 है और राइट हैंड साइड भी हमारे पास mlt-2 है। सो डायमेंशन ऑन बोथ द साइड इज करेक्ट, है ना। So the dimensions on both the side is same. So this equation is dimensionally consistent. तो ये जो इक्वेशन है ये डायमेंशनली कंसिस्टेंट है, क्योंकि दोनों तरफ डायमेंशन सेम आ गई, तो ये इक्वेशन हमारी करेक्ट है। विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन हमने ये प्रूव कर दिया। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल से समझते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन है, चेक द डायमेंशनल कंसिस्टेंसी ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। हमारे पास एक इक्वेशन है, इस इक्वेशन को हमें विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनली बताना है कि क्या ये कंसिस्टेंट है या नहीं है, मतलब क्या ये करेक्ट है या नहीं है, वेदर इट इज डायमेंशनली कंसिस्टेंट और नॉट। लेट अस स्टार्ट। देखिए सॉल्यूशन देखिए, तो हमारे पास क्या है, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at²। दिस इज, आपको पता है ये हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन होती है, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड देखिए, यहाँ पे क्या है, डिस्टेंस है, डिस्टेंस की डायमेंशन क्या होती है, l होती है, सबको पता है। उसके बाद u इज द इनिशियल वेलोसिटी, चाहे इनिशियल वेलोसिटी हो चाहे फाइनल वेलोसिटी हो, है तो वेलोसिटी, तो वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होती है, lt-1, और मल्टीप्लाई बाय क्या है, यहाँ पे t है, तो t की डायमेंशन क्या हो गई, t हो गई। प्लस का प्लस, हाफ की कोई डायमेंशन नहीं होती, ये तो नंबर होता है,
उसके बाद आ गया एक्सेलेरेशन। एक्सेलेरेशन की डायमेंशन क्या होती है, एल टी माइनस टू, और फिर क्या है टी स्क्वायर, और टी स्क्वायर की डायमेंशन क्या होगी, टी की स्क्वायर ही होगी। चलिए, तो लेफ्ट हैंड साइड तो हमारी डायमेंशन एल है, इस तरफ आ जाइए, टी की यहाँ पे -1 है और टी की यहाँ पे +1 है, तो टी की यहाँ पे डायमेंशन कैंसिल हो गई, तो क्या बचा यहाँ पे एल बचा, प्लस यहाँ पे टी की -2 है, यहाँ पे टी की +2 है, कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा यहाँ पे एल बचा। और एल डायमेंशन में एल डायमेंशन ऐड कर सकते हैं बिकॉज दीज टू डायमेंशंस आर सिमिलर, these two dimensions are same, so we can add L with L. So what you get when you add L with L? Yes, only L, not 2L. ठीक है ना। so यहां भी डायमेंशन कितनी मिल गई, L मिल गई। so on each left hand side and right hand side we get the dimension L. so this is dimensionally consistent, this is correct। ठीक है, तो हमने क्या प्रूव कर दिया कि डायमेंशन की हेल्प से हमने ये बता दिया कि ये जो हमारी इक्वेशन है S इक्वल टू यू टी हाफ ए टी स्क्वायर, ये करेक्ट है बिकॉज लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों तरफ डायमेंशन क्या आ गई, एल आ गई। लेफ्ट हैंड साइड भी डायमेंशन एल है और राइट हैंड साइड भी हमारी डायमेंशन क्या है, एल है। दिस इज कॉल्ड डायमेंशनल कंसिस्टेंसी, दिस इज कॉल्ड होमोजेनिटी ऑफ इक्वेशन, कि हमारी जो इक्वेशन है वो होमोजीनियस है। ठीक है, हम ऐसा भी बोल सकते हैं, यहाँ पे हमने क्या चेक कर लिया कि हमारी जो इक्वेशन है वो होमोजीनियस है। होमोजेनिटी ऑफ इक्वेशन हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया। होमोजेनिटी ऑफ इक्वेशन का मतलब क्या होता है, जो इक्वेशन है वो डायमेंशनली कंसिस्टेंट है, होमोजीनियस है, एक जैसी है, बिकॉज डायमेंशन हर जगह एक जैसी है, चाहे आप लेफ्ट हैंड साइड देख लो चाहे आप राइट हैंड साइड देख लो, दोनों तरफ इक्वेशन की सेम डायमेंशन है। सो दिस इज कॉल्ड डायमेंशनली कंसिस्टेंट, और यू कैन से इट इज होमोजेनिटी ऑफ इक्वेशन। तो डायमेंशन की पहली एप्लीकेशन क्या है कि हम चेक कर सकते हैं कि जो भी हमें मैथमेटिकल इक्वेशन दी गई है वो करेक्ट है या नहीं है। कैसे पता करेंगे, आप उस इक्वेशन में दोनों तरफ डायमेंशन निकालोगे और दोनों तरफ अगर डायमेंशन सेम आ गई तो वो इक्वेशन करेक्ट है, नहीं तो वो इक्वेशन रॉन्ग है। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट एप्लीकेशन, और बाकी की जो दो एप्लीकेशंस है उनको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, कोई डाउट होता है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो या व्हाट्सएप पे आके पूछ सकते हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।